Recording start. Hi, good morning. Good morning. Good morning, Good ma'am. morning to all the conversation. Yeah. That's very happy. Good morning to all. Good Yeah. morning, Priya. आप सबकी थकान दूर हो गई क्या? हाँ, मैं तो सोई भी नहीं हूँ रात को, पता है? क्यों इतनी excited? So it's आप सोए नहीं है, that's going global. Good morning, everyone. And Okay, good morning. yeah, so we are almost at the concluding chapter of आज हमारा खत्म हो जाएगा magic book so that we can start it afresh from a Monday. And I always think that जब हमारे हमेशा lessons मतलब जो fresh book है वो Mondays को शुरू होती है because the beginning of the week. Somehow it so happens like that. So आज बहुत beautiful part है the universe in you. So this is how the universe works for us. Okay, and uske importance kis tarah se, how do we go about it? That's what we are going to study today. Anyone who wants to read? Can I read today? Ha, please do that. Yeah. The universe and you. There is a level that you can reach with gratitude that causes unlimited abundance in your life. The way चला गया? I think ऊपर चला गया ज़्यादा. The way that this level of gratitude is reached is through your relationship with the universe, or if you prefer spirit or God. You can tend to think of the universe as separate from you, and when you think of it, look up above yourself and toward the sky. While the universe most certainly is above you, it is also below you and behind you and beside you, and it is within every single thing and every single person. That means the universe is within you. As below, so above, and as above, so below. With this knowledge alone, you may work miracles. The emerald tablet, circa 5000 to 3000 BC. When you understand that the universe is within you, and by its very nature it is for you, wanting you to have more life, more health, more love, more beauty, and more of everything you want, then you will feel genuine gratitude to the universe for everything you receive in your life, and you will have established a personal relationship between you and the universe. The more genuine gratitude you feel toward the universe for everything you receive, the closer your relationship becomes with the universe. And that is when you can reach the level of unlimited abundance from the magic of gratitude. You will have opened your heart and mind completely to the magic of gratitude, and with it, you will touch the lives of everyone you come into contact with. You will become a friend of the universe. You will become a channel for unlimited blessings on earth. When you get up close and personal with the universe, when you feel that closeness of universe within you, from that moment on, the world will belong to you, and there will be nothing that you cannot be, have, or do. Yeah, so isme matlab we definitely have our own vision points of what God is like and where is God, and whenever we pray to God we always look upwards, you know, like somewhere up there कि ठीक है भगवान कहीं पे heaven में और heaven कोई जगह होती है और वो हमारे ऊपर है, but it is a cosmic force, and that force of that universe is, I mean, the God is just a force. And emerald tablet जो है जो बहुत साल पहले like 500 BC, you know, like before Christ भी मतलब ये मिली थी जमीन के अंदर से, मतलब यहीं पे सारी टीचिंग्स जो होती थी जब भी कोई ग्रेट मैन होते थे. ऑफ कोर्स आजकल किताबें होती है, यूट्यूब पे जा सकते हैं, पहले का यूट्यूब बुक सब कुछ वो होता था कि एक पत्थर, उसको हिंदी में शिलाजीत बोलते हैं,
उस शिलाजीत पे एनग्रेव कर दिया जाता था, कुछ भी लिख के, सपोज कोई चीज कोई फाइंडिंग है तो उसको शिलाजीत पे लिख दिया जाता था और उसको गाड़ देते थे ताकि आगे वाली जनरेशन्स को वो मिले तो वो उन टीचिंग्स को यूज कर सकते हैं। तो वो एमरल्ड टैबलेट पे ये लिखा हुआ था, एज अबव सो बिलो, यू नो। सो इसमें यही लिखा हुआ है दैट अकॉर्डिंग टू दैट द यूनिवर्स इज एन अनलिमिटेड इन्फिनिट फोर्स एंड अबंडेंस, बट वो टैप करना पड़ेगा हमको, यू नो, बिलीफ के साथ में और फ्रीक्वेंसी के साथ में, दो चीजें जो बहुत जरूरी हैं अगर हमको यूनिवर्सल एनर्जी टैप करनी है। पहले डेफिनेटली इस फ्रीक्वेंसी, अपने आप को गुड हाई लाइफ फोर्स में रखना, एक गुड फ्रीक्वेंसी में रखना, being in the happy state of mind, being in gratitude. Okay, so gratitude has got a very very high frequency. अगर हमको यूनिवर्सल पावर को टैप करना है तो जैसे ही हमने किसी चीज के लिए थैंक यू बोला, अपने आप वो चीज हमारी तरफ मैग्नेटाइज होने लग जाती है, बिकॉज आप इन लाइन आ गए हो उस फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, सो दैट इज व्हाट, सो वी कैन कॉल इट स्पिरिट, गॉड, यूनिवर्स, जो भी रिलेशनशिप हम कंफर्टेबल होते हैं करना। ठीक है, सो इट सेज दैट व्हाइल द यूनिवर्स, डेफिनेटली हम ऊपर तो देखते ही इज अबव यू, इट इज ऑल्सो बिलो यू, इट इज बिहाइंड यू एंड बिसाइड यू, और हमारी बॉडी के हर एक सिंगल सेल और सिंगल पर्सन में गॉड है। इट जस्ट दैट हमने एक्टिवेट नहीं किया हुआ है उस पावर को। जैसे ही हम थैंक यू बोल देते हैं, वो पावर जो हमारे हर एक सेल में है, दैट इन्फिनिट इंटेलिजेंस, वो एक्टिवेट हो जाती है। अभी मैं भी उसका स्विच ऑफ किया हुआ है। So to switch it on, we just have to be grateful and be in love all the time. So that's why Emerald Tablet में जो लिखा हुआ है, as below so above, and as above so below. With this knowledge alone, you may work miracles. So you know that आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, या कोई सोचे कि देखो मुझे salvation या enlightenment तब मिलेगी when I go to a particular place, you know, like maybe कोई ऐसे मंदिर में विश्वास है या कहीं पे। तो नहीं, हम वो सेम पावर बिना वहां जाए यहाँ बैठे बैठे भी डिराइव कर सकते हैं, बिकॉज गॉड इज एवरीवेयर, विच इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ द यूनिवर्स, एंड दिस वाज रिटन ऑन एमरल्ड टैबलेट। सो दैट्स व्हाट इट इज, डिकोडिंग ये वाला जो सेंटेंस है बाय सेइंग कि यूनिवर्स जो है ये हमारे अंदर है, बाय इट्स वेरी नेचर इट इज फॉर अस, wanting us to have more in life, more health, more love, more beauty, and more of everything you want. Then you will feel genuine gratitude to the universe for everything you receive in your life, isn't it? I mean, लेकिन उसके लिए पहले grateful होना पड़ता है, कहते हैं ना, only when you give do you receive. Okay, so that's very important. और जितना ज्यादा genuine gratitude, देखो शुरू में मैकेनिकली करना पड़ेगा, क्योंकि जब बहुत अपहीवल्ड सिचुएशंस होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, तो उस वक्त कभी कभी दिल से नहीं निकलता है, बट हमने ये सीखा है दैट यू हैव टू बी ग्रेटफुल एंड यू हैव टू से थैंक यू। तो बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम टेक्निकली मैकेनिकली भी बोले, आर्टिफिशियली बोलेंगे हम अगर थैंक यू, तो हम देखेंगे हमारी आउटवर्ड सिचुएशन में चेंज, मतलब इट हैज स्टार्टेड टू चेंज। एंड व्हेन वी सी दैट इट हैज स्टार्टेड टू चेंज बिकॉज ऑफ constantly being in gratitude, we will see that वो जो depth of gratitude है ना, फिर वो दिल से निकलेगी, क्योंकि हमने उसको, मतलब we have experienced that in our life, है ना। तो अब दिल से निकलेगा कि thank you so much universe for guiding me and leading me and always holding my hand and giving me this kind of a beautiful life where everything falls into place and whatever I think happens for me. Okay, and then this gratitude becomes more and more genuine and heartfelt. Okay, और उसके बाद आपका रिश्ता गॉड के साथ बहुत अच्छा हो जाता है, and then it says that you reach that level of unlimited abundance, you know, which comes only and only from the magic of gratitude. ठीक है, so that is how it is. So now जब हम जैसे जैसे एक्सपीरियंस करते रहते हैं यूनिवर्स की पावर को, वैसे वैसे ही we become friends, you know, like then we can talk to the universe sometimes when we want to, that look universe, this is what I want and this is how it's shaping, and I really want to touch the stars, I want to, you know, like have these are my milestones till my destiny, till my journey, you know, towards this, and that's about it. So you just have to talk, you have to ask, और फिर वो रिश्ता ऐसा हो जाता है कि आपके अंदर भरोसा होता है ना। आफ्टर सम टाइम जब आप देखते हो कि आपकी 10 प्रेयर्स आंसर हो गई हैं और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अनवेल हुई हैं, तो आपको अब
अच्छे से मतलब बहुत क्लोज एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाती है. And then we will see that, like from that moment on, it says the world will belong to you. मतलब आपकी दुनिया आपके the world is yours. You own that, because you know that whatever you have that relationship with the universe, और आपको पता है frequency कैसे काम करती है. And then there will be nothing that you cannot be, have or do. And that is how simple and easy it is. So हर question का एक जवाब, gratitude is the answer. हाँ जी प्रिया. Yeah. Gratitude is the answer. Gratitude is the cure for broken or difficult relationships, for lack of health and money, and for unhappiness. Gratitude eliminates fear, worry, grief, and depression and brings happiness, clarity, patience, kindness, compassion, understanding, and peace of mind. Gratitude brings solution to problems and the opportunities and wherewithal to realize your dreams. Gratitude is behind every success and it opens the door to new ideas and discoveries, as the great scientists Newton and Einstein proved. Imagine if every scientist followed in their footsteps, the world would be propelled into new territories of understanding, growth, and advancement. Current limits would be broken and life-altering discoveries would be made in technologies, physics, medicine, psychology, astronomy, and every scientific field. If gratitude became a mandatory subject in schools, we would see a generation of children who would advance our civilization through spectacular accomplishments and discoveries, obliterating disagreements, ending wars, and bringing peace to the world. The nations who will lead the world in the future are the ones whose leaders and people are the most grateful. The gratitude of a nation's people would cause their country to thrive and become rich, would cause illnesses and disease to drastically drop, businesses and production to escalate, and happiness and peace to sweep the nation. Poverty would disappear and there would not be a single person in hunger because a grateful nation could never allow it to exist. The more people who discover gratitude's magical power, the faster it will sweep the world and cause a gratitude revolution. Yeah. So here it says that it is about the world, adopting gratitude as their culture. So it is like अगर gratitude हमारे schools में आ जाए, अगर मतलब हमने अब देख लिया है कि gratitude, this is the biggest healer. It is a doctor, it is an antiviral, it is an antiseptic, it is an antitoxin, it is everything. We have seen gratitude being the solution to money. We have seen gratitude being the solution to a bad relationship. We have seen gratitude being the answer to having a perfect health. So that way, gratitude is the answer to anything that you want. आपको जिंदगी में अगर world travel पे जाना है, आप पहले से ही thank you for the best world travel I've had, and like it was so amazing and whatever. And you will see that the universe immediately, जैसे ही आपने thank you बोला ना किसी चीज के लिए, वो धीरे धीरे orchestrate होना मतलब शुरू हो जाता है, and very soon you will realize that it comes to you. So that is what we have seen it. And gratitude eliminates fear, worry, grief, depression. हम में से बहुत सारे लोगों को ये वाली आदत थी, isn't it? I mean, we were very fearful about the future. Worry बहुत ज़्यादा करने की आदत, grief, depression, and brings happiness, clarity, patience, kindness, compassion, understanding, and peace of mind. So कोई भी problem है अगर उसका solution चाहिए, gratitude is the answer. I mean, moment you say thank you for the perfect resolution of this, you will see that resolution आपको मिल जाता है, isn't it? या कोई opportunity चाहिए,
say thanks for it beforehand only. Thank you, universe, for giving me the opportunity to go to Italy for this project. And you will see that your name is chosen for that particular thing. है ना? तो जो भी ड्रीम्स में हमने अपनी ड्रीम लिस्ट कैसे लिखी है, ऐसे ही तो लिखी है. जो चीज है नहीं, जैसे किसी को बेबी चाहिए था तो हमने अपनी ड्रीम लिस्ट में ये लिखा है ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू हैव अ बेबी. है ना? इस तरह से लिखा है. Thank you, thank you, thank you for my perfect partner who makes me feel loved every day. Thank you, thank you, thank you for my admission in the best college of my dreams. तो हमने भी तो ऐसे ही लिखा है ना, पहले से थैंक यू बोल दिया, अभी कुछ अता पता भी नहीं है उस ड्रीम का. ठीक है, लेकिन हमने वैसे ही ग्रेटफुल हुए और हमने वैसे ही सोचा जैसे एज इफ वो ऑलरेडी हो चुका है. सो द मोमेंट वी से दिस, दैट मीन्स हर क्वेश्चन का जवाब ग्रैटिट्यूड होता है. Gratitude is behind every success, and this is guaranteed that if you say thank you for any situation, no matter where it is, how bad it is right now, we will have it, the outcome as the best outcome possible. ओके, सो इसमें लिखा हुआ है जितने भी साइंटिस्ट थे, न्यूटन, आइंस्टीन, इन सब ने ग्रैटिट्यूड ही यूज किया था. ये ग्रैटिट्यूड करके ही आगे बढ़े, इनकी डिस्कवरीज ग्रैटिट्यूड की वजह से हुई है. ठीक है, सो इसमें लिखा हुआ है कि अगर सारे लोग साइंटिस्ट ग्रैटिट्यूड यूज करने लग जाएं तो हमारा एक नई दुनिया खुलेगी जिसमें देयर बी बेटर अंडरस्टैंडिंग, ग्रोथ, एडवांसमेंट. वॉर्स नहीं होंगे. सबसे बड़ी चीज, वॉर्स की क्या जरूरत है? पावर लेने के लिए वॉर होती है ना, और या फिर जेलसीज होती है कंट्रीज की, उसके कारण वॉर होती है, या फिर इकोनॉमी उनको अपनी अच्छी करनी होती है किसी और कंट्री की वजह से, इसलिए वॉर होती है. कभी कभी कोई ईगो क्लैश होता है, 50 साल पहले का कोई वो होता है, यू नो, लाइक सम काइंड ऑफ एन इशू दैट सडनली बिकम्स द रीजन फॉर द कॉज ऑफ दिस वॉर, यू नो. सो इस तरह से, सो इट सेज दैट चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, फिजिक्स में हो, मेडिसिन, साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइंटिफिक फील्ड, ग्रैटिट्यूड वर्क्स इज वे. और अगर ग्रैटिट्यूड को स्कूल में मैंडेटरी सब्जेक्ट बनाया गया, पहले मॉरल साइंस होता था बट वो बहुत अलग तरीके से पढ़ाते थे, यू नो, मतलब ऑफकोर्स किताब होती थी तो उसमें कोई टूल्स नहीं थे, उसमें बताया था हमको कि बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहिए एंड ऑल दैट. सो बट देन अगर ग्रैटिट्यूड स्कूल्स में मैंडेटरी सब्जेक्ट हो जाए, देन वी वुड सी जनरेशन ऑफ चिल्ड्रंस, मतलब हमारी सिविलाइजेशन ही अलग हो जाएगी, फ्यूचर अलग हो जाएगा, एंड देयर विल बी स्पेक्टेक्युलर अकम्प्लिशमेंट एंड डिस्कवरीज एंड ऑल दैट, you know, and there'll be a lot of peace, a very peaceful world, अगर gratitude हम schools में पढ़ाने लग जाएं तो. ठीक है, so although gratitude है कुछ schools में, government schools में अभी शुरू हुआ है. ठीक है, यहीं पे कोई लेके गया है, one of the practitioners, and well, let's see if it actually increases and it gets better, and इस चीज को फैलना बहुत जरूरी है. ठीक है, so it's just that हर country rich हो जाएगी अगर country के सारे लोग grateful होने लगे. So every country is going to thrive and they'll become rich. People will not know illnesses because आप अपने health के लिए रोज बोलते हो thank you for my health, thank you for my perfect health. We saw Meena's daughter, little daughter, saying that no the other day, thank you for my health, thank you for my health, thank you for my health, and she kept repeating it like that. हम क्यों नहीं बच्चों की तरह ऐसे रिपीट करते जब हमको बहुत अच्छी कोई चीज चाहिए होती है. So it has to be like that. Thank you for my health. Thank you for my health. And we will see a revolution in our health. And poverty would disappear, of course. Nobody will sleep hungry because a grateful nation could never allow it to exist, isn't it? So इसलिए जैसे जैसे लोग और ज्यादा gratitude को discover करेंगे, वैसे वैसे there will be क्रांति आ जाती है ना, जैसे gratitude revolution. So that is what will happen. So hence now this is the last topic. Take the magic with you. Hanji. Take the magic with you. Take gratitude with you wherever you go. Saturate the magic of gratitude into your passions, encounters, actions, and life situations to make all your dreams come true. In the future, if life presents you with a challenging situation that you think you have no control over and you are at a loss as to what to do, instead of worry or fear, turn to the magic of gratitude and be grateful for everything else in your life. When you deliberately thank the goodness in your life, the circumstances around the challenging situation will magically change. We showed him, that is man, the way, whether
whether he be grateful or ungrateful rests on his will. Quran Al-Insan 76:3. Say the magic words thank you. Say them out loud, shout them from the rooftops, whisper them to yourself, say them in your mind, or feel them in your heart. But wherever you go from this day forward, take gratitude and its magical power with you. To have a magical life filled with abundance and happiness, the answer is on your lips. It is inside your heart and it is ready and waiting for you to bring forth the magic. Rhonda Byrne. Okay, this was a last, advice to us. The last part of this book is this one. Take the magic with you. Don't leave this magic. Anytime when you're worried, there's something going on in your life, there's some relationship issue going on in your life, you're going to meet a particular person, always do that. Thank you so much for the perfect meeting. Thank you so much for the abundance of money in my life. Thank you so much for having lots of people and friendships in my life. Thank you so much for the perfect health that I have. Thank you so much for the laugh and laughter and joy that I have all around me. Thank you so much for all my senses and organs. Thank you so much for, the source of incomes that you have. Thank you so much that the house I live in. And when you keep doing all these things, you will see that different doors start opening in front of your life. That is how it is. So take this magic with you. If the things are not working, आप उसके लिए भी thank you हो जाओ. जो आपके पास है, उसके लिए thank you हो जाओ. So this gratitude is past, present, and future. For past, you will say thank you for everything possible. For present, yes, whatever you have, the smallest of the thing that you have in your life, you have to be grateful for that. Okay, only then your future will give you more and more of what you're grateful for. और फ्यूचर में भी अगर किसी चीज की कंसर्न हो रही है, सपोज कोई प्रोजेक्ट है जो नहीं अभी लाइक उसका नहीं वो सेटअप हो पा रहा है, यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, या हेल्थ है, अगर आप हेल्थ से स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ और है मतलब रिलेशनशिप से स्ट्रगल कर रहे हो, फ्यूचर के लिए भी पहले से ही थैंक यू बोल दो. थैंक यू फॉर माई परफेक्ट रिलेशनशिप विद सो एंड सो पर्सन. Thank you for the beautiful health that I'm enjoying because I'm always full of energy and vitality. अगर ये भी अपने आप को बोल दिया repeatedly, you will see that वो outcome अच्छा ही होगा क्योंकि आपने पहले ही thank you बोला, और thank you की vibrancy में, उस vibration में you will definitely magnetize. So gratitude is magnetic. We always have to remember this. Gratitude is magnetic. ओके, द मोमेंट ग्रेटिट्यूड अब वो मैग्नेटाइज करेगा वो वाली चीज जो आपने ग्रेटिट्यूड के साथ अटैच की थी. आपने ग्रेटिट्यूड के साथ पैसा अटैच किया था, अब पैसा मैग्नेटाइज हो जाएगा. आपने थैंक यू वर्ड के साथ हेल्थ अटैच की थी, वो हेल्थ आपके पास आ जाएगी. दैट इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. ओके, इसीलिए रॉन्डा बर्न ने लिखा हुआ है टेक ग्रेटिट्यूड विथ यू वेरेवर यू गो. ठीक है, आप ऑफिस जा रहे हो, ग्रेटिट्यूड लेके जाओ. आप सड़क पे हो, ग्रेटिट्यूड लेके जाओ. आप पार्टी में हो, ग्रेटिट्यूड साथ में होना चाहिए. ठीक है, यू आर ट्रैवलिंग टू सम अदर कंट्री, सम अदर सिटी, थैंक यू आपके साथ होना चाहिए. सो हेंस सैचुरेट का मतलब है बहुत ज्यादा करना. आप कोई भी चीज सैचुरेट मतलब कॉन्सेंट्रेट करना, दैट्स व्हाट सैचुरेट मीन्स. मतलब उसमें भर देना ठूस ठूस के, दैट्स व्हाट सैचुरेट मीन्स. सो सैचुरेट द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड इनटू योर पैशंस. जो भी आपका पैशन है, आपको गाना पसंद है, आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, आपको वर्कआउट करना पसंद है, आपको अपना बिजनेस बहुत अच्छा लगता है, सो जो भी चीज है, सैचुरेट द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड इनटू योर पैशंस. Encounters, every person you meet, be very grateful that that person even said thank you to you or good morning to you or hi to you. मीटिंग है, लंबी बात हुई है, हर एनकाउंटर के लिए थैंक यू करो, तो आपको फिर इतने अमेजिंग लोग मिलने शुरू हो जाएंगे. ठीक है, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल योर एक्शंस एंड लाइफ सिचुएशंस टू मेक ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू. तो ये फ्यूचर के लिए लिखा हुआ है कि जो भी चीजें हैं जिनसे आपके सपने उन पे निर्धारित है ना, उन चीजों के लिए पहले से ही थैंक यू कर दो और आप देखोगे कि वो इतने ब्यूटीफुल तरीके से अनवील होती है.
सो इन द फ्यूचर अगर लाइफ में कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, रोंडा बर्न हमारे लिए लिख रही हैं, एनी चैलेंजिंग सिचुएशन कोई किसी भी एरिया में आती रहती है और आपको लग रहा है कि इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त मैं क्या करूं, तो वरी और फियर करने की बजाय टर्न टू द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड और ग्रेटफुल रहो फॉर एवरीथिंग एल्स इन योर लाइफ। बिकॉज अगर सिचुएशन बहुत ही खराब होती है ना, तो हमें उस चीज के लिए थैंक यू नहीं बोला जाता उस टाइम, है ना। सपोज कोई रिलेशनशिप है और वो बहुत टॉक्सिक हो गई है रिलेशनशिप, और आपको नहीं समझ आ रहा है कि अब मैं इस सिचुएशन के लिए क्या करूं, मतलब नहीं दिल से निकल रहा है उस पर्सन के लिए जिसने आपको बहुत दुख दिया है और जिसकी वजह से आपने बहुत सफर किया है, ठीक है, तो आपको नहीं दिल कर रहा है उन सब के लिए थैंक यू करने का, तो कोई बात नहीं। रॉन्डा ने ये लिखा है कि अगर कोई सिचुएशन बहुत ही खराब है एंड यू डोंट फील लाइक सेइंग थैंक यू उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, तो जो बाकी की चीजें आपकी जिंदगी में ना, आपके पास जान है, आपके पास बॉडी है, आपकी सारी बॉडी अच्छे से काम कर रही है, आपके पास घर है रहने के लिए, आपको रोज खाना मिलता है अपनी टेबल पे, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास पेरेंट्स हैं, आपके पास लोकेलिटी है, कॉलोनी है जहाँ पे आप रहते हैं, है ना। सो इन सब चीजों के लिए भी थैंक यू बोलना अगर हम शुरू कर देंगे, तो अपने आप जो वो वाला एरिया था जहां पे आपका दिल से थैंक यू नहीं निकल रहा था, वो अपने आप इसकी लाइट से वहां पे भी इल्यूमिनेट हो जाएगा। मतलब आप रोशनी किसी भी एरिया में लेके आते हो, वो आपकी जिंदगी के हर एक एरिया को रोशन करती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पैसे का ग्रेटिट्यूड कर रहे हो तो आपकी हेल्थ पे फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेटिट्यूड तो एनर्जी होती है, अगर बॉडी की एनर्जी चेंज हो गई है तो ऑब्वियसली हेल्थ पे तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही ना, क्योंकि हर एक सेल में वो वाली एनर्जी होती है। सो उसका हर एक एरिया में इम्पैक्ट पड़ता है। वो लाइट है, अब लाइट रूम में जलाओगे तो अगर कोई एरिया है, सपोज आपके आपके रूम में बहुत सुंदर एक फाउंटेन रखा हुआ है, ठीक है, तो वो एक है, वो ऑलरेडी बहुत सुंदर है, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं मिल रही थी या फिर कांच गिरा हुआ है और आपने उसके लिए लाइट जलाई थी कि ताकि मुझे पता लग जाए कि कांच का गिरा हुआ है, ताकि मुझे चुभ नहीं जाए, लाइट आपने उसके लिए जलाई थी ना, लेकिन आपको उसमें फाउंटेन भी दिखेगा, आपको उसमें टेबल और कुर्सी भी दिखेंगे, हालांकि आपका पर्पस था कि आपने अपनी सेफ्टी के लिए लाइट जलाई थी, है ना। तो इसी तरीके से अगर हम किसी नेगेटिव जोन, नेगेटिव एरिया के लिए वहां पे थैंक यू की लाइट जलाते हैं, ग्रेटिट्यूड की लाइट जलाते हैं, अपने आप आपके जो बाकी के एरियाज हैं, जैसे आपने रिलेशनशिप के लिए अगर लाइट जलाई है, ठीक है, लेकिन आप देखना आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, आपके पास पैसा भी आने लग जाएगा, आपके घर में सुख शांति हो जाएगी। पहले जो प्रॉब्लम्स थी घर में जिसके कारण बहुत कलेश रहता था या नहीं, मतलब अनरेस्ट वाली सिचुएशन होती थी घर में, और आपको हमेशा वो वाली ठीक हो जाएगी। एंड यू विल सी दैट यू नो कहाँ कहाँ से आपके जिंदगी में जादू होना शुरू हो जाता है उसकी वजह से। तो कोई बात नहीं, एक एरिया में नहीं करो तो दूसरे एरिया में करो, तो ये एरिया भी इल्यूमिनेट हो जाएगा उसकी वजह से, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इट सेज। उस वक्त परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। टर्न टू, कहते हैं ना, ऑलवेज मेक ग्रेटिट्यूड योर बेस्ट फ्रेंड। ग्रेटिट्यूड को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, और ग्रेटिट्यूड को बेस्ट फ्रेंड बना लोगे तो यू विल नेवर बी लेट डाउन इन लाइफ आपकी। ठीक है, कोई ड्रीम्स होने में टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो होंगी जरूर, ये तो गारंटी है। और ये सारी बुक्स में, इसमें भी डॉक्टर आई मीन लाइक रोंडा बर्न ने लिखा हुआ है दैट इट इज गारंटीड दैट आपकी जो भी सिचुएशन है जिसके लिए आप धन्यवाद बोलते हो, शुक्राने में रहते हो, वो आपकी सिचुएशन और आपकी पूरी जिंदगी के सारे एरियाज बहुत अच्छे हो जाएंगे। एंड दैट इज व्हाट इट इज। सो ये कुरान का कोट है, कुरान जो इस्लामिक टेक्स्ट है, उसमें लिखा हुआ है ये वाला कोट कि वी शोड हिम दैट इज द मैन द वे वेदर ही बी ग्रेटफुल और अनग्रेटफुल रेस्ट ऑन हिज विल। इसका मतलब है हमने इंसान को रास्ता दिखा दिया है, अब वो शुक्राने में रहता है कि कंप्लेनिंग जोन में रहता है, ये उसकी मर्जी है, ठीक है। तो कह रहे रास्ता हमने दिखा दिया है कि रास्ता एक ही है। अगर जिंदगी में बरकत चाहिए, ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए, खुशियों की बारिश चाहिए, तो रास्ता तो एक ही है, थैंक यू वाला। अब वो उस पर चलता है या नहीं चलता है ये उसकी मर्जी है ना। जैसे हमारे भी ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, कई लोग नहीं करते हैं, कई करते हैं। जो कर रहे हैं उनकी जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंचती जा रही है, ठीक है, और जो नहीं कर रहे हैं अभी भी सफरिंग कर ही रहे हैं ना, मतलब अभी भी उनके जिंदगी में हो सकता है परेशानियां हो, अभी भी वो बहुत ज्यादा सोच विचार करते रहते हैं, बहुत दिमाग यूज करते हैं, जेलसी में आते हैं, गुस्से में आते हैं, क्योंकि उनको ये साइंस पता ही नहीं है, इजंट इट। सो इसीलिए ये मेरा फेवरेट सेंटेंस है इसका, पूरी किताब का,
Say the magic words thank you. Say them out loud. जोर से बोलो, छत पे खड़े होके चिल्लाओ, अपने आप को फुसफुसाओ, अपने दिमाग में थैंक यू बोलो, मन में थैंक यू बोलो, अपने दिल में थैंक यू बोलो, और वेरेवर यू गो, आज के बाद से आप जहां पे भी जाते हो, आप शुक्राने को, थैंक यू को अपने साथ लेके जाओ, और फिर उसका मैजिक हमेशा आपके रास्ते को, आपकी जिंदगी को रोशन करता रहेगा। ठीक है, सो ये इसमें रॉन्डा बर्न ने लिखा है कि अगर आपको मैजिकल जादू वाली दुनिया चाहिए, अबंडेंस की और खुशियों की, तो आंसर आपके अंदर है। ठीक है, दैट मीन्स आपके दिल में है, और मैजिक आपकी वेट कर रहा है। एंड दिस इज द लास्ट थिंग जो रॉन्डा बर्न ने बोला इस किताब का। विद दिस हम ये बुक एंड करते हैं। कल से हम नया सेशन शुरू करेंगे। अगर आपके लाइफ में कोई भी हो जिनको मतलब फ्रेश रीस्टार्ट करना है या बीच में छूट गया था, तो आप उनको इसमें इनवाइट कर सकते हो कल से सेशंस में, सो दैट, क्योंकि अगर पहले ही दिन से अगर लोग समझते हैं ग्रैटिट्यूड को, तो डेफिनेटली लाइक उनकी लाइफ में बहुत मॉन्यूमेंटल चेंजेस होंगे, और उनको ये पता होगा कि क्या है इसके साइंस इसके पीछे। क्योंकि जो इनिशियल चैप्टर्स हैं उसमें इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें भी एमरल्ड टैबलेट का लिखा हुआ है, उसमें भी लिखा है कि जो भी चीज आप ग्रेटफुल किसी चीज के लिए होते हो तो वो एम्पलीफाई होती है। तो ऐसी चीजें इनिशियली डे 0 में है, तो डे 0 हमारा 3 दिन चलता है, तो हम डे 0 कल से दोबारा से शुरू करते हैं। ये हमारा सीजन 2 होगा जैसे हमारी भी वेब सीरीज चल रही है। सो अब सीजन 1 इज ओवर, सो नाउ इट विल बी सीजन 2 डे 0 कल से। So please feel free to invite anybody, any of your friends or relatives or friends, or like anyone, family members, अगर सेशन में उनको करना है या उनका कोई चैलेंज चल रहा है, तो कैसे वो अपनी जिंदगी में बहुत रोशनी ला सकते हैं, जैसे हम सब लेके आए और आ रहे हैं। लगातार लाइफ एक्सपैंड भी हो रही है ना। So that is how it is. Now we go to the other book, which is Power of the Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. और इसमें हम पैसे वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। कल हमने बहुत ही ब्यूटीफुल एफर्मेशन पढ़ी थी कि अपने आप को बार बार ये रीड करो सेंटेंस, पहले तो ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने भी अपनी फोन की गैलरी में ही इसको ले रखा था, और इसको बहुत महीनों तक तो देख के पढ़ा था, क्योंकि लंबा सेंटेंस है तो ऐसे याद नहीं होता था, लेकिन कंसेप्चुअली इसका पता लग जाता है मतलब, तो आप अपने मन में भी ऐसे ही बोल सकते हो। ठीक है, जो बहुत ही सुंदर था। We'll read it again. And thank you, Priya, for reading. So anyone who wants to read this book? Yes, I'll ma'am. be- Yeah. I can read. हाँ, मीतू की आवाज है। हाँ मीतू, यू रीड, बट देन रीड दिस वन ऑल्सो। ये वाला जो सेंटेंस है कल जो हमने पढ़ा था, द येलो पार्ट ऑफ इट। जस्ट दिस, यूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जिन लोगों को भी अभी पैसा क्रिएट करना है, अगर पैसा अटका हुआ है या फिर कुछ खर्चा आया हुआ है जिसके लिए आपको पैसा चाहिए, या कहीं से कुछ रुका हुआ है पैसा, ठीक है, सो उनके लिए ये वाला सेंटेंस है। इसको अगर कोशिश करके अपनी हैंडराइटिंग में लिखो आप। ठीक है, हैंडराइटिंग में लिख के आप इसको दिन में 2-3 बार पढ़ो, और रात को सोने के पहले डेफिनेटली पढ़ना जरूरी है। ठीक है, सो वील रीड दिस अगेन, ऑल्दो ये हम कल कर चुके हैं, सो दिस इज अ क्विक रिविजन फॉर अस। या Getting the right attitude towards money. Here is a simple technique you may use to multiply money in your experience. Use the following statement several times a day. I like money. I love it. I use it wisely, constructively, and judiciously. Money is constantly circulating in my life. I release it with joy, and it returns to me multiplied in a wonderful way. It is good and very good. Money flows to me in avalanches of abundance. I use it for good only, and I am grateful for my good and the riches of my mind. सो ये एफर्मेशन है। एफर्मेशन तो खैर बहुत छोटी होती हैं, लेकिन ये बहुत लंबा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, और ये हमको करते रहना है, पढ़ते रहना है दिन में 2-3 बार, एंड फाइनली हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसको बिलीव करने लग जाएगा। ठीक है, और फिर आप देखना कि किस तरह से आपके कितने सारे डोर्स खुलेंगे फॉर द मनी इन योर लाइफ। हाँ जी, नाउ वी कंटिन्यू विद द what we have to study today, how the scientific thinker looks at money. How the scientific thinker looks at money. Suppose, for example,
You found gold, silver, lead, copper, or iron in the ground. Would you pronounce these things evil? All evil comes from man's darkened understanding, from his ignorance, from his false interpretation of life, and from his misuse of his subconscious mind. Uranium, lead, or some other metal could have been used as a medium of exchange. We use paper bills, checks, nickel, and silver. Surely these are not evil. Physicists and chemists know today that the only difference between one metal and another is the number and rate of motion of electrons revolving around the central nucleus. They can now change one metal into another through a bombardment of the atoms in the powerful cyclotron. Gold, under certain conditions, becomes mercury. I believe that a modern scientist in the near future will be able to make gold, silver, and other metals synthetically in the chemical laboratory. The cost may be prohibitive now, but it can be done. I cannot imagine any intelligent person seeing anything evil in electrons, neutrons, protons, and isotopes. The piece of paper in your pocket is composed of atoms and molecules with the electrons and protons arranged differently. Their number and rate of motion are different. That is the only way the paper differs from the silver in your pocket. या ये थोड़ा सा टेक्निकली डॉक्टर मर्फी ने समझाया हुआ है कि करेंसी जिसके साथ हम इतना ज्यादा वो अटैच करके रखते हैं, इट इज नॉट करेंसी. मतलब पैसा इज अ मीन्स टू एन एंड. चाहे वो यूरेनियम है, चाहे वो पेपर है. अब पेपर को लोग बहुत इनसिग्निफिकेंट मानते हैं, बट आज के जमाने में करेंसी इज पेपर. सो पेपर की इतनी वैल्यू है. गोल्ड, यूरेनियम, किसी भी चीज को करेंसी मान सकते हैं. तो करेंसी में पावर नहीं है. वो यही बोलते हैं कि अगर पैसे किसी के पास हैं या नहीं है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड की इंफॉर्मेशन है. उसके कारण चाहे कुछ भी करेंसी है, चाहे वो गोल्ड भी हो, गोल्ड भी क्रिएट कर सकते हैं. इट्स नॉट अबाउट दैट. बट पैसे को लेके हमारा एटीट्यूड क्या है, ठीक है, दैट विल डिटरमिन. क्या हमारा लैक का एटीट्यूड है, कंजूसी का एटीट्यूड है, हम ये सोचते हैं कि मनी इज रूट ऑफ ऑल इविल, या फिर हम पैसे को वर्शिप करते हैं. एंड वी कीप सेइंग दैट आई लव मनी, आई रियली रियली लव मनी. I love to spend money, I love to give money, I love to have money. I feel very, very stable, and secure when I have a lot of money. I love to spend money, I love to go around the world, I love to live in luxurious hotels, I love to donate money. So all of those things. So ये हमारा माइंडसेट है जिसने उस पैसे को फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जिसके कारण या तो वो हमारे पास है या नहीं है. वो सिर्फ एक पेपर या मेटल या कुछ है. जैसे हमारी मेंटर ने हमें एग्जांपल दिया था कि अगर आपका बाइक पंचर हो जाती है, ठीक है, और आपके जेब में क्रेडिट कार्ड्स हैं, क्या पैसा काम आएगा उस वक्त? नहीं आएगा ना. क्रेडिट कार्ड विल नॉट गेट योर पंचर रिपेयर्ड. आप नहीं दे सकते. सड़क पे किनारे खड़े होकर आप अपना पंचर ठीक करा रहे हो पंचर आउटलेट से, मतलब जो भी वो आया था. सो वेयर इज दैट मनी नाउ? मनी की इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है. सो इट्स नॉट मनी जिसमें पावर है. हमने अपने सबकॉन्शियस में जो उसको पावर दे रखी है, उस हिसाब से पैसा हमारे पास होगा या नहीं होगा. दैट इज व्हाट. सो हाउ टू अट्रैक्ट द मनी यू नीड. अब डॉक्टर मर्फी बता रहे हैं हमको. How to attract the money you need. Many years ago, I met a young boy in Australia who wanted to become a physician and surgeon, but he had no money. I explained to him how a seed deposited in the soil attracts to itself everything necessary for its unfolding, and that all he had to do was to take a lesson from the seed and deposit the required idea in his subconscious mind. For expenses, this young, brilliant boy used to clean out doctors' offices, wash windows, and do odd repair jobs. He told me that every night as he went to sleep, he used to picture in his mind's eye a medical diploma on a wall with his name on it in big, bold letters. He used to clean and shine the framed diplomas in the medical building where he worked. It was not hard for him to engrave the image of a diploma in his mind and develop it there.
Definite results followed as he persisted with his mental picture every night for about 4 months. The sequel of the story was very interesting. One of the doctors took a great liking to this young boy, and after training him in the art of sterilizing instrument, giving hypodermic injections and other miscellaneous first aid work, he employed him as a technical assistant in his office. The doctor later sent him to medical school at his own expense. Today, this young man is a prominent medical doctor in Montreal, Canada. He discovered the law of attraction by using his subconscious mind the right way. He operated an age-old law, which says, having seen the end, you have willed the means to the realization of the end. The end in this case was to become a medical doctor. This young man was able to imagine, see, and feel the reality of being a doctor. He lived with that idea, sustained it, nourished it, and loved it until, through his imagination, it penetrated the layers of his subconscious mind and became a conviction, thereby attracting to him everything necessary for the fulfillment of his dream. So इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड का. एक बच्चा था छोटा, मतलब ऑफ कोर्स ही वाज अ टीन अर्ली 20s में. ही वाज लाइक अ क्लीनर, ही वाज अ सफाई करता था वो डॉक्टर की क्लिनिक की. तो वो हमेशा, बट उसकी ड्रीम में ये था कि उसको खुद को एक फिजिशियन बनना था, उसको डॉक्टर बनना था. बट ही वाज अ सफाई कर्मचारी उस ऑफिस का. तो वो रोज वो कपड़ा लेके जब डस्टिंग करता था, तो वो जब ऑफ कोर्स लाइक डॉक्टर की क्लिनिक में वो उनके वो लगे होते हैं ना सर्टिफिकेट्स वगैरह, तो सर्टिफिकेट पे वो अपना नाम देखता था और अपने नाम के आगे उसने डॉक्टर को अटैच किया हुआ था कि डॉक्टर सो एंड सो. और उस सर्टिफिकेट को जब भी वो साफ करता था बहुत प्यार से हाथ में लेके कि ये उसका खुद का सर्टिफिकेट है, और वो इमेजिनेशन में वही अपना ही नाम देखता था. ठीक है, तो वो ये बहुत टाइम तक करता गया दैट, और अपने आप को वो एंड गोल यही करता था कि ये मुझे सर्टिफिकेट मिल चुका है और इस पे डॉक्टर और उसका नाम लिखा हुआ है. और बहुत इस आइडिया के साथ ही वुड लिव विद इट, ही वुड नरिश इट एंड ही वुड लव इट. ये 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं दैट ही लिव विद दिस आइडिया, एंड गोल, एंड रिजल्ट कि डॉक्टर सो एंड सो उसका नाम था. ही लिव्ड विद इट, ही नरिश्ड इट एंड ही लव्ड इट. दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी बहुत हाई थी उसकी उस सर्टिफिकेट को लेके. ठीक है, जिसके कारण उसने सेवरल फ्यू वीक्स तक ये किया. तो डॉक्टर ने उसको हायर किया, डॉक्टर को लगा कि इसमें पोटेंशियल है आगे बढ़ने का. तो डॉक्टर ने उसको सिखाया कि हाइपोडर्मिक इंजेक्शंस, हाइपोडर्मिक का मतलब होता है स्किन में जो डीप लगाते हैं, हाइपोडर्मिस डीप स्किन होती है. तो जो इंजेक्शंस लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, और कैसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, जो अलग अलग गैजेट्स यूज करते हैं डॉक्टर, उनको स्टेरिलाइज करना पड़ता है ना, इन्फेक्शन हटाना पड़ता है उनमें से. तो कैसे स्टेरिलाइज करते हैं ये सब सिखाया उस लड़के को. ये सिखाया इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, और बाकी के छोटे मोटे प्रोसीजर सिखाए कि किस तरह से करते हैं. और उसी डॉक्टर ने एक दिन इसको स्पॉन्सर किया और इसको मेडिसिन की पढ़ाई कराई, क्योंकि उनको इस लड़के में वो पोटेंशियल दिखा था. और आज की तारीख में, मतलब जब ये बुक लिखी थी उन्होंने, तो इन्होंने लिखा है कि अभी इस वक्त वो लड़का बहुत बड़ा डॉक्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में. ठीक है, तो इस तरह होल्डिंग ऑन टू द एंड रिजल्ट ऑफ द आइडिया, मतलब जो भी आपके दिमाग में है कि आपको कुछ करना है ना, तो अगर हम उसको होल्ड करके रखते हैं अपने दिमाग में, अपने आप देखोगे कि किसी तरह से यूनिवर्स के फोर्सेस उसको ऑर्केस्ट्रेट करके आपके सामने हकीकत बना देते हैं, है ना. सो दैट्स व्हाट यू, आई मीन लाइक आई रिमेम्बर reading it, first hold it in your head and then you will hold it in your hand. मतलब कोई भी चीज आप दिमाग में पकड़ो तो उसके बाद ही आप हाथ में पकड़ पाओगे उसको. तो इसलिए दिमाग में आपने क्या पकड़ रखा है, इस चीज के बारे में आपको केयरफुल होने की जरूरत है. अगर दिमाग में लैक है, दिमाग में ये है, ओ गॉड आई एम सिंगल, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बहुत खर्चा आता जा रहा है, मेरे पैसे कम हो रहे हैं,
मेरे जॉब में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मेरे जॉब का मेरे घर का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मेरा बॉस बहुत अच्छा नहीं है, मेरे घर में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, अगर ये दिमाग में होल्ड किया है तो आप अपनी जिंदगी में भी उसको हकीकत बनते हुए देखोगे। लेकिन अगर आपने दिमाग में, इसलिए कहते हैं कि हेड में क्या होल्ड कर रखा है उसको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में आपकी अंतरात्मा में जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, और वहां पे जाके वो रेस्ट करता है। और जो अंतरात्मा में, जो अंदर आपके सबकॉन्शियस में जाता है, वो आप अपनी हकीकत में होते हुए देखते हो, है ना। तो ये चीज लिखी हुई है कि कितना ब्यूटीफुली तरीके से डॉक्टर मर्फी ने उस बच्चे का एग्जाम्पल बताया है कि हाउ ही कुड बिकम अ डॉक्टर एंड यू नो ऑल दैट। सो बस यही था, ये जो यंग मैन था, ही वॉज एबल टू इमेजिन, सी एंड फील। तभी हमको कहते हैं ना, अपनी ड्रीम लिस्ट को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखो, ठीक है। ये हमेशा बोलते हैं कि अपनी ड्रीम लिस्ट को हमेशा, एवरी डे ऑफ योर लाइफ, अपनी ड्रीम लिस्ट को अपनी आंखों के सामने रखो, उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में विजुलाइज करो, उसी को बार बार रीड करो। आप देखोगे कि फाइनली सबकॉन्शियस में उसकी इमेजेस इतनी क्रिस्टल क्लियर रूप में उतरती हैं कि वो बहुत जल्दी हकीकत में आप अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखते हो, है ना। सो ये जो यंग मैन था, इसने देखा, इमेजिन किया और फील भी किया, फीलिंग बहुत लविंगली। लव तो तभी आएगा ना उस सर्टिफिकेट को देके, किसी और डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर वो अपना नाम देख देख के खुश होता रहता था, और उसको बहुत लविंगली वो उसके हाथ से, प्यार से, कपड़े से उसकी सफाइयां करता था कि मेरा सर्टिफिकेट है, मैं इसको बहुत प्यार से रखूंगा, इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, जबकि वो नाम किसी और का था। बट देखो, दिस इज हाउ इट वर्क्स। And then he became a doctor. So he lived with that idea, he sustained it, he nourished it and loved it, until through his imagination it penetrated the layers of his subconscious mind and became a conviction, thereby attracting to him everything necessary for the fulfillment of his dream. अब उस वक्त तो ये भी तो सोच सकता था ना कि मैं तो एक सफाई कर्मचारी हूँ, मेरे पास पैसा कहाँ है, डॉक्टरी की पढ़ाई बहुत महंगी होती है, और कैसे होगी, क्या होगी, कौन से कॉलेज में जाऊंगा, ये नहीं किया हुआ है, पैसे नहीं है। बट उसने तो ये सोचा ही नहीं ना, वो तो बहुत क्रिस्टल क्लियर था कि सर्टिफिकेट मेरा है, उस पर मेरा नाम लिखा हुआ है और ये डॉक्टर करके लिखा हुआ है, और मैं फिजिसिस्ट हूँ, ठीक है, फिजिशियन हूँ, सॉरी नॉट फिजिसिस्ट, आई एम सॉरी, फिजिशियन हूँ। तो उसने सोचा कि मैं फिजिशियन हूँ, तो उसने दिमाग में इस आइडिया को होल्ड करके रखा। अब तो हम लोग क्या है, बीच रास्ते में छोड़ देते हैं अपनी ड्रीम, अगर कुछ टाइम तक नहीं होती है ना, तो हम उस आइडिया को नरिश करना ही छोड़ देते हैं, हमें लगता है कुछ हो तो रानी है। और फिर जैसे आपने ये बोला, आप वापस -10 किलोमीटर चले जाते हो, इतना दूर चल के आए थे ग्रेटिट्यूड कर करके, ठीक है, और फिर बोल दिया कि ये तो मेरी जिंदगी में हो ही नहीं रहा, वापस फट से रिवाइंड, ठीक है, पीछे चले जाते हो, फिर आप आगे चले जाते हो, फिर आगे बढ़ते हो, फिर कंप्लेन करते हो कि ये तो हुआ ही नहीं, फिर आप पीछे चले जाते हो। ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी प्रेयर्स आंसर होने में कुछ टाइम लगता है, एक साल भी लग जाता है, बट वो जब होती है ना, तो वो इतने ब्यूटीफुल तरीके से होती है दैट आपको जिंदगी के मजे आ जाएंगे। मतलब इट इज वर्थ इट एंड मच मोर देन वर्थ इट, दैट इज व्हाट। इसीलिए लिखा हुआ है दैट यू नो लाइक सस्टेन इट। सस्टेन का मतलब होता है एंड्योर, मतलब उस ड्रीम को सस्टेन करके रखो, मत गिव अप करो। कोई बात नहीं, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, हो सकता है वो 9वें महीने होने वाला था, ठीक है, तो अब तब तक 9 मंथ्स के लिए सस्टेन करना पड़ेगा ना। कोई भी सीड आप लगाते हो, पौधा लगाते हो अगर धरती में भी, मिट्टी में, तो उसको उगने में टाइम लगता है ना, वो एकदम से तो अडल्ट प्लांट नहीं बन जाता। तो इट इज ऑल राइट, कभी कभी बहुत जल्दी हो जाता है, वैसे तो देखो टाइम स्पेस रियलिटी होती नहीं है, मतलब एकदम से कोई चीज आप इंस्टेंट उसका असर होता है, आउटकम इंस्टेंट होता है, लेकिन हमारे दिमाग में जो ब्लॉकेजेस है ना, वो उसके कारण उसमें डिलेज होते हैं, क्योंकि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस में हमने किसी पर्सन को कुछ एक्टिविटी करते हुए बहुत सालों से देखा है, तो हमारे दिमाग में उसका टैटू बहुत स्ट्रांग होता है कि ये पर्सन ऐसे ही बिहेव करता है, इसका ये नेचर है, ठीक है, वो हम विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि रोज सबकॉन्शियस माइंड में वो वाली इंफॉर्मेशन जा रही है कि वो पर्सन का बिहेवियर अच्छा नहीं है, ये जो भी एक्ट वो कर रहा है या जिस भी तरह से बिहेव कर रहा है वो आपको पसंद नहीं है, ठीक है। तो वो पर्सन लगातार आपके घर में वो किसी पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर रहा है, करता जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो बहुत डीप आपका मार्क छोड़ता है सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। तो इसलिए अब, लेकिन आप प्रेयर आपकी उल्टी है कि नहीं वो पर्सन वो ऐसा हो जाए, ठीक है। अब वो चीज नहीं इंस्टेंटली हो रही है, क्योंकि जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो इतना गहरा असर किया हुआ है अभी सबकॉन्शियस माइंड में कि उसको टोटली रिमूव होने में टाइम लगता है। तो अगर हमारे किसी प्रेयर आंसर में डिले हो रहा है ना सपोज, तो ये हमारे ही कारण हो रहा है,
बिकॉज हमारा उसमें बहुत वो जो रेजिस्टेंस था या ब्लॉक था वो इतना स्ट्रांग था कि उसके कारण हम आउटकम बहुत सुंदर वाला नहीं देख पा रहे थे। तो डजंट मैटर, 2 महीने में नहीं हुआ, 8 महीने में हो जाएगा, ठीक है, लेकिन होगा जरूर अगर आपने उस इमेज को होल्ड कर रखा है, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन में मैंने आपको बताया था, आई डोंट नो अगर आपको याद है, प्रोसेस से विजुअलाइजेशन होता है और एंड गोल विजुअलाइजेशन होता है। प्रोसेस भी होता है, प्रोसेस विजुअलाइजेशन होता है कि सपोज अगर आपको रेस जीतनी है तो आप मतलब जो ट्रैक्स होते हैं, रनिंग ट्रैक्स है ना, उसमें वो लाइनें बीच बीच में बनी हुई होती हैं और वो राउंड होता है जनरली रनिंग ट्रैक। तो आप अपनी लेन में दौड़ रहे हो, उसको प्रोसेस, वो प्रोसेस है, प्रोसेस विजुअलाइजेशन, कि आप अपने आप को रन करता हुआ देख रहे हो और आप देख रहे हो कि आप कितना स्ट्रॉन्ग लीड ले रहे हो, मतलब कितनी आगे हो, जो आपसे पीछे वाला पर्सन है वो कितनी दूर है, बहुत दूर है, ठीक है। और प्रोसेस विजुअलाइजेशन में आप दौड़ते जा रहे हो, दौड़ते जा रहे हो, दौड़ते जा रहे हो, फाइनली फिनिश लाइन आ गई है और किस तरह फिनिश लाइन को तोड़ के आप आगे निकले हो और आप वो विक्ट्री वाला हाथ ऊपर उठा के चीयर कर रहे हो और सारे लोग खड़े होके ताली बजा रहे हैं स्टेडियम में और उनकी चीयर्स, उनकी अपलॉज आप सुन रहे हो। तो आपने ये प्रोसेस एंड एंड रिजल्ट दोनों ही विजुअलाइजेशन किया। कई बार हम सिर्फ एंड रिजल्ट का विजुअलाइजेशन करते हैं, ठीक है। सो एंड रिजल्ट का विजुअलाइजेशन कर रहे हैं यानी कि आपका जो फाइनल आउटकम है वो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इज टू whatever it just would be that आप वो 1 2 and 3 स्टेडियम में खड़े हुए हो और आपको गोल्ड मेडल मिल रहा है और आप नंबर 1 वाला जो है, जो गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं, तो आप गोल्ड वाले डेक पे खड़े हुए हो एंड आपने यू आर गेटिंग द गोल्ड मेडल। ये फाइनल विजुअल आउटकम है, फाइनल एंड गोल विजुअलाइजेशन। तो आप कुछ भी कर सकते हो। इस बच्चे ने जिसको डॉक्टर बनना था, इसने भी एंड गोल विजुअलाइजेशन किया था कि इसका सर्टिफिकेट आ गया है, सर्टिफिकेट इतना सुंदर से इसने फ्रेम करा के रखा हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है और उस पे इसका नाम ऐसे लिखा हुआ है, डॉक्टर सो एंड सो, है ना। तो किसी भी तरह आपको विजुअलाइज करना है, इस टेक्निक को आप यूज करो इमेजिनेशन में, बट होल्ड ऑन टू दैट आइडिया, ठीक है। उस आइडिया को लेके डिप मत हो, कभी कभी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को मत लेके आओ, एंड यू विल सी दैट वो कितनी आराम से आपकी जिंदगी में आ जाता है। हाँ जी नीतू। Why some men do not get a raise in pay? If you are working in a large organization and you are silently thinking of and resenting the fact that you are underpaid, that you are not appreciated, and that you deserve more money and greater recognition, you are subconsciously severing your ties with that organization. You are setting a law in motion, and the superintendent or the manager will say to you, "We have to let you go." Actually, you dismissed yourself. The manager was simply the instrument through which your own negative mental state was confirmed. It was an example of the law of action and reaction. The action was your thought, and the reaction was the response of your subconscious mind. सो ये बहुत क्लियर है। जिन जिन लोगों को लगता है कि मेरा ऑफिस का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, मुझे सैलरी कम मिलती है, मेरा काम अप्रिशिएट नहीं होता है, मेरा बॉस बायस्ड है, मुझे उस हिसाब से इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है जिस हिसाब से बाकी लोगों को मिलती है, मेरी वॉइस हर्ड नहीं होती है, ये चीजें सबकॉन्शियस की वजह से एक दिन ऐसा आता है कि वो जॉब आपके हाथ से चली जाती है, ठीक है। ये बॉस की गलती नहीं है कि बॉस बहुत खराब है और उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। ये कांस्टेंट इंफॉर्मेशन का आउटकम है जो सबकॉन्शियस माइंड में हमने डाल रखी है और रोज हम उसको मतलब और ज्यादा सॉलिडिफाई करते हैं। आज गए ऑफिस, आज भी सोचा कि मेरा एनवायरनमेंट इतना खराब है, आज फिर मेरे बॉस ने ऐसा कर दिया। कल गए, किसी आपके कोवर्कर ने और कोलीग ने कुछ ऐसा बोल दिया। तीसरे जब सैलरी मिली तो आपकी फ्रेंड मतलब जो भी कोवर्कर है बोल रही है कि मुझे इतनी सैलरी मिली है। नया नया पर्सन आया है, वो बोल रहा है कि मुझे इतने पैसे मिले हैं, मुझे इतनी सैलरी, और आपको लग रहा है मैं तो इसी ऑर्गेनाइजेशन में 4 साल से काम कर रही हूँ और मैंने इतनी मेहनत की, मैंने बहुत मेहनत से काम किया, लेकिन मुझे एक्स अमाउंट मिल रहा है और इसको x+5 मिल रहा है, जबकि ये आज आई है और इसका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी मुझसे कम है। इसको में डिपॉजिट कर रहे हो, तो अब वहां जाके ये जो नेगेटिव वाली चीज है ना, ये सॉलिडिफाई हो जाएगी और अब आप देखोगे कि वो नौकरी आपके साथ आपकी चली जाएगी, क्योंकि सब कुछ के बारे में आपको कंप्लेन है।
पैसे के लिए कंप्लेन है, आपको अपने ऑफिस के लिए कंप्लेन है, आपको अपने कोवर्कर्स के लिए कंप्लेन है, एंड एक दिन ऐसा आएगा सो अब वो जो मैनेजर या आपका सुपरवाइजर है, जो बॉस है, वो तो बस एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके कारण आपकी जॉब चली गई है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है। ये जो हमारे साथ जिंदगी में होता है, पहले तो उसको ओन करना जरूरी है। जो जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की उपज है, वो हमने सीड डाला था जो अभी पेड़ बन गया है और बहुत सारे पेड़ बन गए हैं उसके, ठीक है, क्योंकि हम बार बार उसको सोच सोच के सॉलिडिफाई करते जा रहे हैं अपने दिमाग में। तो अपना सीड बदल दो, पुराना सीड जो डला हुआ है उसको निकाल के फेंक दो और नया सीड उसकी जगह पे डालो, दैट माई इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। डॉक्टर मर्फी ने इतने सारे बताए ना हमको टूल्स, वेल्थ, सक्सेस या ओनली वेल्थ। अब वो जॉब से पैसा आ रहा है कि आपको गिफ्ट से पैसा मिला, कि आपको पता लगा आपने कुछ प्रॉपर्टी कहीं आपको पता भी नहीं था आपने इनहेरिट करी, आपका टैक्स रिफंड आया, कहाँ से वो पैसे आ रहे हैं इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। आपका वो पैसा आएगा जो आप अपने हेड में होल्ड करोगे। सो होल्ड इट इन योर हेड टू होल्ड इट इन योर हैंड्स। Okay, so hold it in your head now and keep holding that idea that I am receiving X amount. You can be very precise. You can be very precise about it. Like I'm very precise about how much money I want every month as my net this thing, you know, सारा खर्चा करने के बाद मैं इतना रिसीव कर रही हूँ पैसा और हर महीने। तो वो अगर क्लियर गोल है या फिर आप बार बार अपने आप को बस यही बोल रहे हो माई इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, तो आप वो भी एक अच्छा थॉट है। उसमें आप मतलब उसमें ब्लॉक्स कम आएंगे ना, उसमें नहीं आएगा कि अगर आपने सोचा है कि मुझे आज 1 करोड़ रुपए मिल रहा है तो एक उसमें ब्लॉक्स आ जाएंगे, ऐसे कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, विच इज ओके बिकॉज ऑब्वियसली आज तक नहीं आए तो पुरानी इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो अभी नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए या फिर सिर्फ वेल्थ, वेल्थ का आइडिया, वेल्थ एंड सक्सेस, आपको सक्सेस भी चाहिए जिंदगी में, वेल्थ सक्सेस, इस आइडिया को होल्ड करो अपने सबकॉन्शियस माइंड में, टू होल्ड इट इन योर हैंड। और वो कितनी जल्दी एक्चुअल रियलिटी बनती है वो डिपेंड करता है दैट कितने ब्लॉकेजेस हैं आपके दिमाग में वेल्थ एंड सक्सेस को लेके। अगर पास्ट में आपको काम में सक्सेस नहीं मिली है या वेल्थ में बहुत रगड़ रगड़ के पैसे आए, बहुत मेहनत कर करके, तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन आएंगे जरूर। हो सकता है इस महीने नहीं आए, you will get it next month, okay, but you will, that's an assurity, okay, and that is how it works. So यही वाला है। So हम आगे पढ़ते हैं। Obstacles and impediments on the pathway to riches. I am sure you have heard men say, that fellow has a racket. He is a racketeer. He is getting money dishonestly. He is a faker. I knew him when he had nothing. He is a crook, a thief, and a swindler. If you analyze the man who talks like that, you discover he is usually in want or suffering from some financial or physical illness. Perhaps his former college friends went up the ladder of success and excelled him. Now he is bitter and envious of their progress. In many instances, this is the cause of his downfall. Thinking negatively of these classmates and condemning them, their wealth causes the wealth and prosperity he is praying for to vanish and flee away. He is condemning the thing he is praying for. He is praying two ways. On the one hand, he is saying, wealth is flowing to me now, and in the next breath, silently or audibly, he is saying, I resent that fellow's wealth. Always make it a special point to rejoice in the wealth of the other person. हाँ, कुछ कुछ बातें डॉक्टर मर्फी बार बार रिपीट कर रहे हैं किताब में, क्योंकि ये हम बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं तो वो हमको आई थिंक बहुत हैमर कर रहे हैं ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में, दैट डोंट कंडेम अदर्स रिचेस, रिजॉइस इन एवरीवन्स। अगर किसी का बहुत सुंदर घर है, ठीक है, आप रिजॉइस करो उनकी सक्सेस, उनके ब्यूटीफुल हाउस में। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा ज्वेलरी है, ठीक है, और आपके पास में भी उस एक्सटेंट तक नहीं है,
आप रिजॉइस करो दैट वाओ बिकॉज दैट पर्सन लव्स, नो यू डोंट हैव टू से कि अरे उसका तो ऐसे ही है, उसका ऐसे काला पैसा है सारा, कहाँ से मिला है. पीपल नॉर्मली से थिंग्स लाइक उसका दहेज का है, उसने खुद कौन सा कमाया है, उसको अपने लॉस के यहाँ से इतना मिलता है. अरे तो वो भी तो किस्मत है ना. अगर मिलता भी है, सबकी किस्मत तो नहीं होती ना. अगर किसी ने फ्री का पैसा कहीं से गिफ्ट में मिला है किसी को, तो किस्मती तो है, इजंट इट? आई मीन लाइक दिस इज ऑल्सो व्हाट उसके दिमाग में प्रोस्पेरिटी कॉन्शियस है. अब प्रोस्पेरिटी को ये थोड़ी देखती है कि कौन से रास्ते से आ रही है, तो किसी भी रास्ते से आ जाएगी. आपको टैक्स रिफंड आ जाएगा, आपको पता लगेगा कुछ इंश्योरेंस का पैसे पहले कहीं आपने इन्वेस्टमेंट की थी, आपको याद नहीं, आपको वो मिल जाएगा. हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपके नाम से कोई इन्वेस्टमेंट की थी, आपको वो पैसा मिल जाएगा. कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी किसी विलेज एरिया में, आपको पता लगेगा कि उसमें आपका हिस्सा था, आपको वो मिल जाएगा. तो पैसे के तो 100 मायने होते हैं. ठीक है, तो पैसा कहाँ से आ रहा है इससे कुछ मतलब नहीं है. बट हमको क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमको नहीं बोलना है दैट पर्सन इज अ बिग शो ऑफ. ठीक है, इट्स ऑल राइट. ये उनके जीने के तौर. इसमें डॉक्टर मर्फी ने लिखा है कि आप बोलो कि अरे नहीं, मैंने तो उसको बहुत गरीबी में भी देखा था, उसने गलत ही वेंट ऑन अ रॉन्ग लैडर टू गेट दिस काइंड ऑफ अ मनी. हम ऐसा सोचते हैं कई बार कि मैंने उसको देखा था जब वो कुछ भी नहीं था, आज की तारीख में वो इतना बड़ा बन गया है. उसने प्रोस्पेरिटी कॉन्शियसनेस अपने लेके आया है, तभी उसके पास इतना ज्यादा. और मनी कम्स टू मी इजिली एंड एफर्टलेसली हैज टू बी अ कांस्टेंट थॉट प्रोसेस इन योर हेड. ठीक है, पैसा मेहनत से नहीं आता है, पैसा फ्रीक्वेंसी से आता है. जिस दिन हम ये वाली बात समझ गए, उस दिन वैसे ही हर चीज सॉर्ट हो जाएगी. सो आपको एफर्टलेसली, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो एक दिन में 4 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते, और वो इतना इनसेन अमाउंट रिसीव करते हैं हर महीना कि मतलब वो प्रॉपर्टीज पे प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं और कोई मेहनत नहीं करते. मतलब मेहनत एज इन लाइक वो जो 4 घंटे काम करते हैं वो स्मार्टली काम करते हैं. कहते हैं ना दैट यू शुड नॉट वर्क हार्ड, यू शुड वर्क स्मार्ट. ओके, सो दे डोंट वर्क हार्ड, दे वर्क स्मार्ट, दे वर्क ओनली फॉर अ वेरी फ्यू आवर्स इन अ डे. ठीक है, और इतना बढ़िया उनका परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस है. लेकिन उनको छप्पर फाड़ के दिन दुगनी रात चौगनी बरकत जो होती है ना, इसको बोलते हैं दैट मनी इज कॉन्स्टेंटली मल्टीप्लाइंग इन देयर लाइफ. सो दे आर नॉट वर्किंग वेरी हार्ड, दे एंजॉय देयर लाइफ, अपने घूमते हैं फिरते हैं मजे करते हैं सब करते हैं. बट दैट्स हाउ इट इज, है ना. सो ये चीज बहुत जरूरी होती है कि हमारा माइंडसेट कैसा है. सो पैसे माइंडसेट से ही आते हैं. और कभी क्रिटिसाइज अगर हमने किसी को बोल दिया, या किसी को बोल दिया उसका तो उल्टे सीधे पैसे हैं, उसके दहेज के पैसे हैं, उसका ये पैसा है, उसका वो पैसा है, डोंट डू दैट. इसमें एंड में भी लिखा हुआ है, ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, रिजॉइस इन एवरीबॉडीज वेल्थ एंड सक्सेस एंड मनी. ओके, रिजॉइस, ब्लेस देम विथ मोर, ब्लेस देम. आपको लगता है कि उनमें विजडम नहीं है, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, और वो इतने सारे पैसे को डिजर्व नहीं करते. ठीक है, डिजर्व तो करते हैं. पैसा को बहुत अच्छे से पता होता है कि मुझे किस घर में जाना है. ठीक है, जहां पे पैसे को इज्जत दिखती है वो उस घर में आता है. So it is very, very clear because money is a frequency, money is an energy. Okay, money is, it's just a symbol. That symbol works on frequency and energy. अगर frequency and energy हम अपनी अच्छी रखेंगे, especially पैसे की बातों को लेके, या फिर दूसरों के पैसे पे unnecessary comment नहीं करके, you will see that the money will keep flowing to you unceasingly. आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा. ठीक है, और बिना मेहनत किए आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी माइंडसेट में अबंडेंस माइंडसेट है. ठीक है, इट देयर इज नो कंजूसी माइंडसेट. सो इसलिए एंड देन ऑफ कोर्स हमने मैजिक बुक में पढ़ा है दैट जब भी पैसे निकल रहे हो, ब्लेस करके पैसे दो. बहुत सारा उसमें ग्रैटिट्यूड डालो दूसरे के लिए जिसको आप पैसे दे रहे हो. that person is kind of really, उसकी खूब ग्रोथ हो, उसके बच्चों के सपने पूरे हो जाएं, उसके सारे ड्रीम्स फुलफिल हो जाएं, उसके माँ बाप बहुत खुश रहें, फैमिली में बहुत संपन्नता रहे. इस तरह करके ब्लेस करो, चाहे आप 2 रुपए दे रहे हो. ठीक है, इट्स नॉट द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू गिव, इट इज द अमाउंट ऑफ ग्रैटिट्यूड जो आप पैसे में डाल के देते हो, है ना. उससे आप प्रेस वाले को हो सकता है सिर्फ 10 रुपए दे रहे हो, प्रेस वालों को देते हैं ना हम लोग. सो हार्डली, मतलब कभी कभी डेफिनेटली 50, 60, 80 बनते हैं, बट कभी कभी हो सकता है 2 ही कपड़े दिए तो आपको 10 रुपीज ही देने पड़ रहे हैं उसको. तो सिर्फ 10 रुपीज दे रहे हो, लेकिन उस 10 रुपीज में आप कितना शुक्राना डाल के दे रहे हो, कितना ब्लेस करके दे रहे हो उस पर्सन को, प्रेस वालों को. ठीक है, ये मैटर करता है. इससे आपकी फ्रीक्वेंसी और आपका फ्यूचर आउटकम डिसाइड होगा. एंड दिस इज द ओनली वे इट वर्क्स. Rejoice in other people's wealth,
रिजॉइस इन योर ओन वेल्थ दैट यू हैव राइट नाउ. जब तक अभी जो आपके पास है उसमें ग्रैटिट्यूड नहीं होगा ना, तब तक आगे का दरवाजा खुलता नहीं है. तो इसलिए अभी करेंटली जो जो चीजें आपके पास हैं, जो पैसे से आई हैं और पास में आई थी, आप उसको थैंक यू बोलने लग जाओ. अपने आप देखना कि आगे कैसे पैसे आने के रास्ते खुलेंगे. और फिर ऑफ कोर्स एफर्मेशंस हमको मिली हुई है. एक था सिर्फ वेल्थ, रात में अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में बोलना. दिन को अल्फा स्टेट, आप दिन को आप लेटना चाहते हो, रेस्ट कर रहे हो, तो दिन को भी आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में हो, तो आप वेल्थ सक्सेस या ओनली वेल्थ या वेल्थ सक्सेस पीस प्रॉस्पेरिटी या वेल्थ प्रॉस्पेरिटी, आप अपने कीवर्ड्स पिक करो आपकी लाइफ के कौन से. ठीक है, आपकी कीवर्ड है लव ऑफ अ पार्टनर, तो आप उसके बारे में करो. तो जो भी चीज जो वर्ड्स आप कीवर्ड्स आप अपने दिमाग में डाल रहे हो, ठीक है, वो आप देखोगे दैट यू विल होल्ड दैट इन योर हैंड और आप उसको एक्चुअल रियलिटी में बनते हुए देखते हैं. एंड दिस इज द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड. एंड not just like Dr. Joseph Murphy, all the authors have spoken about the same thing. All the authors you see around the world जो आजकल लिख रहे हैं about the power of the subconscious mind, mind map, mind works, manifestation works, or whatever it is, सब में एक ही चीज लिखी हुई है, that you have to, your thoughts become things. यानी कि जो thoughts हैं आपके दिमाग में, that will become things and that will actualize very fast. Okay, so that's about it. Thank you so much, Meetu, for reading. It was a lot of reading we did today in this book today. है ना? Thank you. So thank you so much. So कल हम शुरू करेंगे protect your investments. Thank you, ma'am. Phenomenal. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank Thank you. you, Thank Dipti. you. Thank you so I'll much. just stop the. Ma'am, someone has said Sharab, some name that's may I speak? Someone has Sharwari. said. Yeah, of course, please speak. You don't even have to ask. I Good don't see any morning. hand raised, so I did not call out anyone's name. No. I just read a chat. मतलब मैंने अभी पढ़ा था, so I just. Yeah. Please share. Sharwari, I Okay, couldn't hi find Sharwari. couldn't find the raised hand ka icon. I wanted to share कि there were certain things I had written down in my desire list. First and foremost was getting a job and standing on my own feet, which has come true, and I wanted to share it with you. Apart from this, there were other desires such as building my own home, as in not a house, as a peaceful home and all. And this happened in such a subtle manner. It was only about a week back that I realized that also has been happening. So I want to thank you and the group, and I also want to thank Ayan for introducing me to the group. Oh, you live in Bangalore? Yeah. Okay. Wow, this is so amazing. Thank you, Ayan, for introducing Sharwari. And this is just the beginning, Sharwari. You see your life opening up in the most beautiful ways. I mean, in areas where you may have just thought a while ago, never thought that you want that, and you will see even that happening in your life. And this is how beautiful it is. You see yourself 1 year from now when you're going to be a transformed life and transformed person. So yeah, thank you and God bless you with more abundance and happiness in your life. Yeah, Thank you. so we have Darshna. Good morning, ma'am. Good morning. Madam, I really want to share a few things. On 22nd May, with my kids and my father, he's 75-year-old. And actually new, I can say, not old, he's new. और उनको लेके मैं केदारनाथ गई थी और बहुत सारे न्यूज आई हैव सीन के इतना क्यों है आइज ये यानी स्नोफॉल है, ये है वो है, लेकिन कंटिन्यूसली मैंने इमेजिन किया कि हमारी जर्नी बहुत अच्छी हो, स्मूथ हो, बहुत अच्छे से हम जाए, अच्छे से दर्शन करें. यानी मैंने वहां पे ध्यान ही नहीं दिया, ना न्यूज़पेपर में ना कुछ, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से इमेजिन, रोज ग्रेटिट्यूड लिखना, हर एक चीज अच्छे से फॉलो किया. एंड बाय द गॉड ग्रेस हमारी जर्नी इतनी स्मूथ और अच्छे से हुई. और मेरे पापा यानी उनको हार्ट अटैक आया है बहुत पहले एक बार. देन ऑल्सो
उनका दर्शन इतने अच्छे से हुआ और वो इतने बच्चों के जैसे हंस रहे थे और इतने अच्छे से उन्होंने दर्शन किया। इतना -2 डिग्री था वहां पे। और जब वो ऊपर आए, जब रात को हम उनको थोड़ा लेट हो गया था ऊपर मंदिर तक आते हुए, तो ही केम एट नाइट 2 AM और उस टाइम टेम्परेचर -2 था। देन ऑल्सो ही वॉज परफेक्टली फाइन। थोड़ा ब्लड फ्रीज हो गया था, लेकिन ठीक ठाक थे, बातें कर रहे थे, हर कुछ था। और मैंने अच्छे से उनको मसाज वसाज किया और नेक्स्ट डे हम लोग ने दर्शन किए विथ ईज। एक पैसा देना नहीं पड़ा, विथ ईज वो अंदर मंदिर में गए, दर्शन किए, वहां पे टाइम स्पेंड किया मेरे बच्चों ने, हमने। बहुत अच्छा हमारे दर्शन हुए और बहुत अच्छा हमारी पूरी ट्रिप ऋषिकेश, हरिद्वार, केदारनाथ बहुत अच्छे से हम करके आए। ये सब होने के बाद मैंने सोचा कि यार मेरा थोड़ा अकाउंट यानी जो मनी है वो थोड़ा डिप डाउन हो गया था, बिकॉज 16 डेज के लिए हम बाहर थे। तो मैंने उसके लिए बहुत सारी प्रेयर्स किया कि मेरा अकाउंट वापस एकदम अच्छे से, यानी जितने भी मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं उससे भी ज्यादा मैं अर्न करूं विद इन 15 डेज। वो एकदम धूम होके सब पैसे वापस फटाफट। और बहुत सारे क्लाइंट्स आई एम गेटिंग। एंड एक तो डे बिफोर यस्टरडे वन पर्सन केम and immediately he gave me 20,000 rupees immediately cash कि मैडम मैं अफ्रीका से आता हूँ, आप पैसे ले लो, बाद में मैं यानी कब आपको फॉरवर्ड करूँ। तो यानी एकदम इजी, विथ ईज एंड कंफर्ट। मैं हमेशा बोलती हूँ रिसीव मनी विथ ईज एंड कंफर्ट। तो यही हो रहा था कि वो मनी भी बहुत अच्छे से आ रहा है और हमारे ट्रिप भी बहुत अच्छा, यानी हंसी खुशी वाला और बहुत अच्छा रहा। So that's only I want to say. Congratulations, but कभी भी earn word use नहीं करते हैं मनी नहीं, के लिए, receive. है ना? receive हाँ, हाँ। receive. earn हाँ, के साथ ना मैम वही कहते हैं। मेहनत associated होती है, बहुत ज्यादा हाँ। efforting, and efforting is opposite of blissful life, you know. नहीं, मतलब ये आप ही ने सिखाया है मैडम। अर्लियर मैं नहीं यूज करती थी ये वर्ड, आप ही ने बोला है आई रिसीव मनी विथ हाँ, ईज I एंड कंफर्ट। received. एकदम से आपने बोला that I wanted to earn so much and you know once हाँ हाँ, again have that kind of a money. That's why I said that use ओके। receive because you know मतलब मैंने ऐसे examples लोगों की जिंदगी में देखे हैं कि they just kept telling themselves that suppose पैसे का कुछ था और इनको financial stability चाहिए थी, तो they said that या business शुरू करने के लिए पैसे चाहिए थे। So, you know, when they said that, you know, I'm receiving so much amount of money to start my new setup or a business or for any reason for that matter. So even if it was for investment, so उन्होंने ऐसी जगहों से रिसीव किए जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एग्जिस्ट करती है। You know, पता नहीं कहाँ से कैसे लोगों के पास पैसे आ गए। मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ का एग्जांपल दिया था, तो she really needed 5 lakh rupees for something. She needed lesser than 5 lakhs, of course, but she received 5 lakhs and one fine day someone calls up and says that हम आपके रिलेटिव हैं और आपके फादर ने जलंधर के पास कोई जमीन ली थी, वो अभी अभी बिकी है, तो उसमें आपके फादर का भी हिस्सा है। तो उसने कहा मेरे फादर तो अब नहीं है, मतलब he had passed away. So then he said that okay आप अपना अकाउंट नंबर दे दो, उसमें हम डाल देते हैं ये वाला पैसा। And I think within a week's time she received that money. So पैसा पता नहीं कहाँ से आता है, ठीक है, उसके बहुत wings होते हैं अलग अलग तरह के। So let it come from there. So we will never think about earning money, ठीक है, we will keep receiving money because receiving money is a birthright. Receiving anything in abundance is a birthright, जो हमने पढ़ा है किताबों में, है ना, to have the best life possible in every area, है ना? So very good, Darshana. Thank you for sharing also always. थैंक यू मैम, And it's थैंक यू। beautiful.